In this video, I'm going to give you 7 life lessons for teenagers. But if you are over 20 years old and if you have still chosen to click on this video, then do not worry because I'm sure there will be something in it for you as well. So let's get right into it. The first lesson that I want to talk about is heartbreak. You know, when we are teenagers and we experience love for the first time, it is magical, right? But if things do not go as per plan and if at all we go through a heartbreak, then it is equally devastating as well. Like जितनी हमें खुशी हो रही होती है उस प्यार के मिलने से, उतना ही बुरा फील होता है जब हमारा heartbreak होता है. If you are a teenager or older and if you're going through a heartbreak and if you're feeling like your world has crashed, तुम्हारी दुनिया ना पूरी खत्म हो गई है, like अब लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है, तो I'm just here to tell you that it's not over. Even though you're feeling like it is, ऐसा नहीं है. If I imagine my situation when I was, in college doing engineering and basically when I was a teenager, मेरी जो experiences होते थे ये crush वाले और relationships वाले, उस टाइम का मैं अभी सोचती हूँ ना as a 30-year-old woman, तो मेरा perspective बहुत ज़्यादा बदल चुका है चीज़ों को लेके. And that is why I wanted to tell you all that there is so much left to life and you have to experience so many more things right now. So do not feel that it's the end and you will meet the love of your life. So hang in there. The second lesson for you is career. Now this is related to point number 1. So I also do coaching calls and when I talk to people who are going through a heartbreak, they often tell me that they're not able to focus on their studies or their job because they've gone through a heartbreak. While I totally understand it, मुझे ही समझ आता है कि कितना बुरा फील हो रहा होगा and all you can do is think about that person and आपका पूरा focus और ध्यान उस चीज़ में जा रहा है. I understand. But at the same time, as your coach, as your guide, as your fellow YouTuber or a colleague, all I wanted to say is right now, the state that you are in, you're not realizing, but you are giving much more importance to that heartbreak than it requires. And I know ये सुनने में बहुत बुरा लग रहा होगा, but career को ना हमेशा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना ज़रूरी है एंड कभी कभी रिलेशनशिप से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना भी ज़रूरी है. अभी तुमको लग रहा होगा कि नहीं, मतलब रिलेशनशिप ही सब कुछ है, बट करियर इज़ अबव रिलेशनशिप एंड इट शुड बी अबव रिलेशनशिप. जैसे तुमने मूवीज़ में देखा होगा, टिपिकल बॉलीवुड मूवीज़ में कि इफ़ यू आर डूइंग वेल, इफ़ यू आर अर्निंग वेल, देन यूल गेट अ गुड गर्ल और यूल गेट अ गुड बॉय. गर्ल्स के केसेस में तो नहीं है अभी तक इंडिया में, बट दैट इज़ सम हाउ ट्रू. लाइक आई डू नॉट वॉन्ट टू से इट, बट इट इज़ ट्रू, राइट? इफ़ यू गो टू अ गुड कॉलेज, इफ़ यू आर अर्निंग वेल, you will get a good girl. You will get a girl of your similar stature. तुम्हारी जो फ्यूचर की सारी जनरेशन है वो उसी पर डिपेंड करेगा कि तुम्हारा करियर कैसा है. The more educated you are, the more educated your family is going to be, and the more educated your family is going to be, the more educated your entire next generation is going to be, right? Now I know ये बहुत ही far sighted thought है, but तुम्हारा पूरा जो परिवार है वो बन सकता है. जो कैटेगरीज होती है ना, जैसे तुम्हारे पेरेंट्स की एक कैटेगरी रही होगी सोसाइटी में, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, हायर क्लास, जो भी क्लास होगा वो डिफाइन होगा तुम्हारी अभी पढ़ाई या तुम्हारी अभी जॉब पे फोकस करने से. सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ दैट थिंग राइट नाउ. एक तो हो गई कि हार्टब्रेक की बात, कि हार्टब्रेक की वजह से आप फोकस नहीं कर पा रहे हो. दूसरा है कि रिलेशनशिप की वजह से आप फोकस नहीं कर पा रहे हो करियर में. ऑल आई वांट टू से इज फोकस ऑन योर करियर, प्रायोरिटाइज योर करियर बिकॉज इट्स गोइंग टू रीप रिवॉर्ड्स लेटर. नाउ द थर्ड थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज फैमिली. आई थिंक टीनेज के टाइम में ना मैंने अपनी फैमिली को सबसे कम वैल्यू दी है. एंड जैसे ही वो फेस क्रॉस हुआ है, लाइक आई थिंक आफ्टर 25 आई स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग देम मच मोर. आई एम श्योर इट विल हैपन विद अ लॉट ऑफ यू एज वेल. इफ यू आर अ टीनेजर एंड वॉचिंग दिस, देन या डेफिनेटली इट हैपन विद यू. बट इफ यू आर ओल्डर, इफ यू आर ऑफ माई एज, देन आई एम श्योर इट इज़ हैपनिंग विद यू. बिकॉज व्हाट हैपन्स इज एज यू ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे आप बड़े होते हो ना, आप अपने पेरेंट्स से ज़्यादा एम्पथाइज कर पाते हो. आप उनको ज़्यादा अच्छे से समझने लगते हो, उनके बारे में ये समझ लगते हो कि उन्होंने जो भी किया, जैसे भी किया, they always had the best interest for you. Like तुम्हारे लिए जो बेस्ट था उस पॉइंट पे वो किया. And that is such a big deal, right? And ये इतनी maturity तभी आती है when you grow up a little. And I feel that people tell me that I'm much more mature than my age. And it might be true. And that is why I'm making this video कि if you are also of my age but आपको अभी तक ये realize नहीं हुआ है कि पेरेंट्स कितने ज़्यादा important होते हैं, तो I just want to tell you that they are
really really important. They're always the happiest for your successes and they're always the most concerned in your sad times. And बहुत कम लोग हैं जो ऐसे होंगे. And obviously पेरेंट्स हैं तो उनके साथ हम लोग by default expect करते हैं कि ये तो उनकी ड्यूटी है, करना ही चाहिए. बट नहीं यार, ये बड़ी बात है, right? So respect them. Now the fourth thing that I wanted to talk about is faith in a higher power. Now ये चीज़ मेरे में बहुत लेट आई. मेरे में I think after marriage I got into a lot of praying and spirituality and faith. ये चीज़ पहले नहीं थी इतनी ज़्यादा, even though I always saw my parents praying, but वो मेरे अंदर आया नहीं था somehow for some reason. And I don't know how to explain it, but I think God has a way of seeing कि कौन कब ready है एक्सेप्ट होने के लिए, मतलब उनका डिवोटी बनने के लिए और समथिंग लाइक दैट. बट कुछ तो है, मतलब समथिंग क्लिक्ड इन द लास्ट 2 years और सो. बट आई बिकेम स्पिरिचुअल सडनली. अच्छे से प्रे करती हूँ मैं डेली 2 बार. इट हैज़ मेड मी सो मच मोर पीसफुल, so much nicer I feel. I always had like little bit I used to get irritated very easily and मुझे परेशान करना बहुत easy था. but अभी थोड़ा वैसा हो गया है कि I have become very stable and calm and chill, and I think that's very nice thing to do and very nice thing to be. and ये सब I think इसीलिए हुआ है क्योंकि मैं spiritual हुई हूँ. and पता नहीं, बहुत अलग सी फीलिंग है, डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब. बट ऑल आई वुड सजेस्ट यू इज़ ट्राई प्रेइंग, इफ़ नॉट ट्वाइस एटलीस्ट वंस अ डे. ज़रूरी नहीं है कि बहुत लंबा कोई प्रेयर हो, बट जस्ट आफ्टर टेकिंग बाथ जस्ट फोल्ड योर हैंड्स एंड 1 मिनट के लिए भी जस्ट ट्राई टू प्रे. आई ऑल्सो डोंट डू लॉन्ग प्रेयर्स, बट 1 मिनट के लिए एटलीस्ट आई फोल्ड माई हैंड्स एंड जस्ट प्रे. सो ट्राई डूइंग दैट, इल चेंज समथिंग इनसाइड यू, and if it does, then you will be able to understand what I'm trying to say. Now the 5th lesson for you as a teenager is start taking care of your health. My workout has never been consistent, I would say. बहुत on and off रहा है. 2019 से ये start है. After MBA, like I have been doing workouts, but it has been very on and off. But I think ये इसीलिए इतना ऑन एंड ऑफ है क्योंकि ये बहुत लेट स्टार्ट किया मैंने अपने 25 के बाद स्टार्ट किया. बट अगर मैंने अपने टीनेज में स्टार्ट कर दिया होता तो मेरे लाइफ का एक वो स्केड्यूल में आ चुका होता एंड फिर मेरे लिए दैट डिफिकल्ट नहीं होता. दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग यू दैट इफ़ यू आर अ टीनेजर और इफ़ यू आर younger than me, then start working out, start taking care of your health as soon as possible so that it is easier to inculcate it in your life, unlike me. Now by taking care of your health, I do not mean कि बस workout से ही हो गया. You also need to eat clean. So when I was younger, I used to not know much about health. And मैंने मतलब थोड़े बड़े होने के बाद ऐसे YouTube वीडियोज़ वगैरह स्टार्ट किए देखना है. मुझे पता चलने लगा कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें नहीं सही हैं. मैंने इसे बहुत लेट सीखा एंड फिर इनकलकेट किया. बट इफ़ यू आर अ टीनेजर एंड इफ़ यू इनकलकेट दीज थिंग्स राइट नाउ, इट बी बेटर फॉर यू. लाइक यू सी ना, सेलिब्रिटीज़ के स्किन कितने अच्छे होते हैं क्योंकि बचपन से ही दे आर गाइडेड टू ईट द राइट थिंग्स. बट पीपल लाइक मी, वी स्टार्ट लेट, लाइक वी बिकम सेल्फ अवेयर. जब खुद से सीखते हैं तब स्टार्ट करते हैं. बिकॉज ऑब्वियसली वी हैव बीन केयरलेस इन आवर टीनेज ईयर्स. सो यू डू नॉट बी केयरलेस एंड स्टार्ट ईटिंग राइट इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी एंड योर physical, mental, emotional health and your physique as well. Now the 6th thing that I want to talk about is have a schedule. See, मेरे को ना मोबाइल बहुत लेट मिला था लाइफ में. जब आई थिंक जब इंजीनियरिंग करने गई थी तो आई मस्ट बी 18-19. तुम लोग इफ़ यूर अ टीनेजर, यू मस्ट हैव हैड इट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ योर टीनेज. सो यू आर अ लिटिल, मेरे से थोड़ी ज़्यादा बुरी हालत है तुम्हारी इस केस में, बिकॉज तुम्हारा इन चीज़ों से, ये गंदी चीज़ों से एक्सपोजर जल्दी हो गया है. मेरा थोड़ा लेट हुआ था तो थोड़ा मैंने लाइफ ज़्यादा इन्जॉय की, बट तुम लोगों ने कम की क्योंकि ऑब्वियसली पहले फ़ोन हाथ में आ गया. तो यू हैव टू बी मोर केयरफुल विथ योर स्केड्यूल बिकॉज यू नो हाउ एडिक्टेड वी ऑल आर टू आवर फोन्स. एंड टिल डेट like I suffer from wasting my time because of my phone, right? So I have to consciously always build that schedule where I minimize my phone time. Like मैं फ़ोन बहुत कम यूज़ करने की कोशिश करती हूँ पूरे दिन में, एंड वो बहुत ही कॉन्शियस चॉइस होता है. बट आई नो इफ़ यू आर अ टीनेजर, तुमने अभी कॉन्शियसली कभी सोचा नहीं होगा कि नहीं आई शुड कीप माई फोन असाइड एंड आई शुड डू दिस डू दैट. बट यू हैव टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ
हैविंग अ स्केड्यूल. सो व्हाट आई डू इज़ मैं गूगल कैलेंडर पे जैसे अपना कैलेंडर ब्लॉक बनाती हूँ, लाइक एवरी आवर इज़ ब्लॉक्ड एंड उसमें अगर कोई लीजर टाइम है ना तो वो भी ब्लॉक्ड है कि लीजर टाइम. सो उस लीजर टाइम में मैं फ़ोन चेक कर सकती हूँ, वैसा है. एंड बीच बीच में भी लाइक आई हैव गिवन माई सेल्फ 15 मिनट्स का ब्रेक ऐसा कुछ, बट आई विल ब्लॉक माई कैलेंडर सो दैट आई हैव अ स्केड्यूल कि हाँ इतने चलो 6 बजे मेरे को एक बुक पढ़नी है. सो बुक रीडिंग टाइम है 6 o'clock, तो आई विल रीड अ बुक. अदरवाइज़ क्या होता है, मिस हो जाती है चीज़ें एंड फिर हम इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते चीज़ों को अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटी. एंड ये मैंने भी बहुत लेट स्टार्ट किया, बट आई हैव स्टार्टेड इट एंड आई हैव सीन द चेंजेस एंड दैट इज़ वाई आई एम रिकमेंडिंग यू एज एन अडल्ट दैट यू शुड हैव अ स्केड्यूल. अगर तुमको पढ़ाई ही करनी है ना तो डिस्ट्रीब्यूट कर लो टाइमिंग कि कौन से सब्जेक्ट में कितना टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है. या अगर इफ़ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल देन ऑल्सो आफ्टर ऑफिस कैसे तुम टाइम यूटिलाइज करने वाले हो. अगर तुमको कुछ और करना है अपार्ट फ्रॉम योर जॉब एंड इफ़ यू हैव अ हॉबी दैट यू वांट टू अर्न आउट ऑफ, सो यू नीड टू स्पेंड डेडिकेटेड टाइम फॉर दैट एंड फॉर दैट you need a schedule. So start making schedules. I personally use Google Calendar and Notion. Notion also helps me a lot. If you don't know about Notion, do let me know in the comment section. I can make a dedicated video of how to use Notion. वैसे बहुत सारी YouTube videos available हैं, but yeah, Notion is a very very helpful tool that I started using I think 6 months back and my life has never been the same. Like I am a different person, I can tell you that. So अगर तुमने अभी से start कर दिया वो use करना, then I think you will be on a different level altogether. So find out ways on how you can organize and schedule your life and yeah. Now the 7th and the last life lesson that I want to talk about is that hygiene and grooming is important. नाउ जब हम बच्चे होते हैं ना या टीनेजर होते हैं या 20s में भी होते हैं ना, हम इतना सीरियसली नहीं लेते. लड़कियां फिर भी लेती हैं आई थिंक, बट लड़के इतना सीरियसली नहीं लेते क्योंकि उनको लगता है कि मैं ना सपोज टू बी डर्टी एंड कि नेल्स बढ़ रहे हैं कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, बाल बढ़ रहे हैं फ़र्क नहीं पड़ रहा, सॉक्स लूज है फ़र्क नहीं पड़ रहा. As someone who has seen all like many boys, and then if you would ask me my preference, I would definitely go for a well-groomed boy rather than like rustic vibe वाला guy, because when we are in our teenage हमें ये सब चीज़ें cool लगती हैं. पता नहीं अभी भी cool है या नहीं, but when I was in my teenage these things used to be cool, but अभी I think things have changed and I don't know अभी का teenage क्या सोचता है, but अभी के जो मेरे age के लोग हैं at least prefer well groomed men and women. Of course लड़कियाँ तो ध्यान रखती हैं अपना ग्रूमिंग का, बट लड़कों को भी रखना इम्पॉर्टेंट है. एंड ऑफ कोर्स द वे यू ड्रेस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आई हैव हैड अ वेरी ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप विथ द वे आई ड्रेस, but I still believe that it's very very important to dress up. Like for this YouTube video I did not want to dress up at all. It's very hot in Mumbai right now and बहुत difficult था मेरे लिए to get dressed, put on a little bit makeup and sit and everything. Already we have to set up mic, camera and everything, तो बहुत ज़्यादा effort है, but I have started to get dressed up a little because मुझे realize हो गया है कि dress up करना important है, because I am coming in front of the camera, right? The kind of personality that I emit through the camera is what you're going to see and that is what you're going to think of me. So it is important and मैं हमेशा ही अगर मतलब एक टी शर्ट में झल्ली बन के रहूँगी जैसा मुझे रहना पसंद है, तो I will not give out that professional vibe that I want to. And the second reason जिसकी वजह से आपको dress up होना चाहिए is because you will feel better yourself. Like I said that I didn't want to get dressed, but once I got dressed and once I got ready and everything, then I started feeling better. जो मेरा जो unkempt state था घर का पजामे में शॉर्ट्स में ऐसे मैं चिल मारी थी, वो चेंज हो गया सडनली. एक पॉइज आ गया बॉडी में. जैसे मैं कभी एक यूट्यूब वीडियो सुन रही थी, उसमें ये बोल रहे थे कि अगर आप सोफे पे ज़्यादा स्पेस लेके बैठो ना, लाइक दिस, इफ़ यू सिट स्ट्रेच्ड आउट एंड रिलैक्स्ड, तो इवन इफ़ यू नॉट रिलैक्स्ड, अगर आप अंदर से रिलैक्स नहीं भी हो, बट अगर आप एक रिलैक्स पॉस्चर में बैठो ना, तो आप रिलैक्स फील करोगे और कॉन्फिडेंट फील करोगे. इससे मैंने ये एनालॉजी निकाली कि अगर आप घर में पड़े हो शॉर्ट्स वॉर्ट्स पहन के जैसे भी, तो आप फिर अपने बारे में वैसा ही सोचोगे. बट अगर आप एक प्रोफेशनल अटायर में हो या वेल ड्रेस्ड हो, मेकअप किया है, बाल अच्छे से कोम्ड है, तो फिर आप खुद के बारे में भी ऐसा सोचोगे कि ओके, व्हेन आई थिंक ऑफ श्रेयशी आई थिंक ऑफ दिस वुमन हु dresses well or who is very gives out that smart vibe. So it's about the vibe that you want to feel about yourself. दूसरों को तो आप vibe देते ही हो, बट खुद को भी एक vibe आती है ना, जो हम जैसे भी होते हैं, जैसे बैठते हैं, जैसे चीज़ें करते हैं, जैसे खाते हैं, जैसे चलते हैं, उससे हमारे अंदर भी एक vibe आती है खुद के बारे में, एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो उसके लिए भी यू नीड टू बी वेल ड्रेस्ड एंड वेल ग्रूम्ड एंड
स्मार्ट. यू नो स्मार्टनेस और पर्सनैलिटी बस लुक से नहीं आती, इन चीज़ों से भी आती है. एंड आई हेट टू से इट बिकॉज मेरा व्यू पॉइंट भी बहुत डिफरेंट था. मुझे पहले लगता था कि नहीं, मतलब यू नीड टू बी कंफर्टेबल इन योर स्किन एंड देन यू विल बी स्मार्ट इफ़ यू आर स्मार्ट. बट दैट्स नॉट द केस. अपीयरेंस मैटर्स. So take care of your personality overall. That is your grooming, your style, your fashion sense. And if you're in your teenage, then it's the right time to identify your style, figure out what suits you, what works for your body type. And yeah, so that's about the last point. So those were the 7 life lessons that I wanted to talk to you about in this video. I hope they were useful to you. Let me know which of these have you started doing, or which of these are you planning to start doing now after watching this video. Also, if you have crossed your teenage and if you watched this video, please comment down below and tell me if there is something else that you think that teenagers should incorporate in their life. And yeah, so on that note, I will end this one here. I'll see you again very soon in my next one. Till then, bye bye, take care.